A warm good morning to all of you. Students, today we will study about the present poem and that is My Mother at 66. My Mother at 66, which is written by Kamla Das. Kamla Das is a Indian poet. She wrote a lot of poems in literature. My Mother at 66 is one of them and it is a very famous poem of Kamla Das. In this poem, the poet Kamla Das described the critical condition of her mother and she is very sad. Kamla Das is also known as Malayalam creator from Kerala. Kamla Das was born on 31 March 1934. She was an Indian English poet, literature, and she is the main Malayalam creator from Kerala. Her prominence in Kerala depends predominantly on her brief tales and memoirs, while her oeuvre in English is noted for poems and personal history. She won Kerala Sahitya Academy Award and Sahitya Academy Award. In this poem, Kamla Das describes the situation of her mother. The poet explains that she was going to Cochin airport with her mother last Friday. She was driving back to the airport from her parents' house. She was with her mother and her mother fell asleep in the car while she was unconsciously sleeping. उसकी जो मदर है unconsciously sleeping, ऐसे लग रही है वो सो रही है. The poet realizes that her mother is growing old. अब पोएट को मन में क्या डर लग रहा है कि मेरी जो मदर हैं उनकी जो ओल्ड डे हैं वो आ रहे हैं. इट मीन्स दैट उन्हें ऐसा भी लगता है कि उनके जो डूम डे हैं, डूम डे मीन्स मृत्यु के दिन जो हैं वो पास आने वाले हैं. Seeing the situation of her mother, Kamla Das is very sad and she doesn't know what to do, how to do, when to do. She is intense while she is in the car at this time with her mother. The face of her mother is pale and open-mouthed. She compares her mother with a corpse. वो अपनी मदर की कंपेयर एक कॉप्स से करती हैं, तुलना लाश से करती हैं. Then she looks outside and sees the young children playing with the trees sprinting. जो वो चिल्ड्रन हैं वो बाहर देखते हैं, trees was running. She realizes that everything grows old after a certain time. The poet is presently feeling aggravation of getting separated due to mother leaving her mother. The poet is presently feeling the aggravation of getting separated due to leaving her mother. Presently, her mother could not, means that her mother could pass on of advanced age whenever surprisingly she is entirely miserable. She continues to say that in the airport she was at the security check, stood far away from her mother and noticed her mother's aging face, which looked pale and dull. The poet feels that being separated from her mother.
On the whole, the poet of this poem is very sad to see the face of her mother. Kamla Das was going to Cochin airport last Friday morning और उनकी जो मदर का जो माउथ है वो ओपन है, येलो कलर का लग रहा है, इट मीन्स बहुत ज़्यादा पीला लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहा है। सडनली यही क्वेश्चन उनके मन में बार बार आता है, व्हाट टू डू, क्या करें, कैसे करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सडनली वो क्या देखती है, विंडो के बाहर देखती हैं, सम चिल्ड्रन आर हैप्पी, कुछ जो बच्चे हैं वो बाहर खेल रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो उस टाइम पर उनके दिमाग से थॉट निकल जाता है, वो उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। फिर सेकेंड टाइम फिर से वो मैं अपनी मदर की प्रॉब्लम होने लगती है, टेंशन होने लगती है। फिर वो विंडो के बाहर देखती है तो मैं क्या महसूस होता है कि जो यंग ट्रीज हैं दे आर रनिंग, जो ट्रीज हैं चल रहे हैं। एक्चुअली द कार वाज इन अपोजिट डायरेक्शन, जो कार थी अपोजिट डायरेक्शन में थी। सो उन्हें लग रहा था सो दैट कि जो प्लांट्स हैं दे आर रनिंग। फिर क्या होता, फाइनली द पोएट रीच्ड कोचीन एयरपोर्ट, और जब वो कोचीन एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं, जब अपनी मदर से अलविदा होती हैं तो उनसे क्या बोलती हैं, सी यू सून अम्मा, अम्मा हम तुमसे दोबारा मिलेंगे। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द समरी ऑफ द पोएम, देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन द टेक्स्ट ऑफ द पोएम। ओके, the present poem shows the fear of losing her mother of the poetess. Her mother in the last phase of her life, so the poet feels that she will pass away soon. The poet gets scared of this thought. To come out of this negative thought, she looked outside of the car. The world outside was full of life and activity. The young trees seemed running fast. Children looked very happy at the airport. They had to undergo a security check. The poet was standing a few yards away from her mother. She looked again at her old mother. She felt pained to look at the colorless and pale face of her mother, but hiding her tears. The poet said, "See you soon, Amma." It means that the present poem shows the fear of losing her mother of the poet. जो पोयम है इसमें क्या दिखाया गया, क्या बताया गया है, जो पोएट का डर है उसको अपनी मदर खोने का। हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, उसकी जो मदर है वो लास्ट फेज है लाइफ का। द पोएट फील्स दैट शी विल पास अवे, वो बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाएगी, एंड गेट स्कैर्ड ऑफ दिस थॉट। यही सब उनके दिमाग में चल रहा है, क्या करें, कैसे करें। टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव थॉट शी लुक्ड आउट ऑफ द कार। इस थॉट से बाहर आने के लिए वो कार के बाहर विंडो के थ्रू क्या देखती हैं, द प्लांट्स वर रनिंग एंड चिल्ड्रन लुक वेरी हैप्पी। फाइनली शी रीच्ड कोचीन एयरपोर्ट एंड दे हैड टू अंडरगो अ सिक्योरिटी चेक। उनका सिक्योरिटी चेक होता है, सुरक्षा जांच होती है। द पोएट वाज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स फ्रॉम her mother. She was standing a few yards away from her mother and looked again at her old mother and failed, और क्या महसूस होता है, and failed pained to look at the colorless and pale face of her mother, and she said, "See you soon, Amma." अम्मा हम आपसे दोबारा मिलेंगे। Okay, so this is a summary of this poem. ये poem की summary है। So the driving, so now I'm the driving from my parents' home in Kochi last Friday morning.
जो पोएट है कमला दास, वो अपने पेरेंट्स के होम से लास्ट फ्राइडे को कोचीन एयरपोर्ट जाती हैं। माई मदर बिसाइड मी, जो कि मदर है वो उनके बगल में बैठी थी। डोज, डोज का मतलब झपकियां लेना, ओपन माउथ, और जो माउथ है वो ओपन। सो हर फेस ashen like that. Ashen means very pale. Ashen means very pale. जिनका फेस है बहुत ज्यादा पेल है, like that of a corpse. Corpse का means dead body, लाश की तरह लगता है। And leaves with pain. जब पोएट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट जाती हैं अपनी मदर के साथ, उनकी जो मदर उनके बगल में बैठी हुई है, जब वो देखती हैं क्या देखा उन्होंने, डोज, उनकी मदर क्या कर रही है, झपकियां ले रही है, ओपन माउथेड, माउथ ओपन है, एंड हर फेस वेरी पेल, उनका जो फेस है बहुत पेल है, वेरी पेल, पीला पड़ गया है, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, एकदम लाश की डेड बॉडी की तरह, एंड गाइस एंड लीज्ड विद पेन, और क्या महसूस होता है, पेन महसूस होता है, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, जैसा उन्होंने देखा तो उन्होंने वैसा प्रेजेंट कर दिया, उसको वैसा महसूस हुआ। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन बहुत जल्द उस थॉट को बाहर फेंक देती है, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मींस रनिंग, लेकिन क्या होता है, बहुत जल्द वो बाहर देखती है कि जो यंग ट्रीज हैं दे आर रनिंग, वो प्लांट्स क्या चल रहे हैं, एक्चुअली द कार वाज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वो जो कार है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, सो दैट उन्हें क्या लग रहा है कि जो प्लांट्स है दे आर रनिंग। द मैरिड चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, खेल रहे हैं, दे आर फुल ऑफ एंथुसियाज्म, जो छोटे छोटे बच्चे दे आर फुल ऑफ एंथुसियाज्म, दे आर एनर्जेटिक। But after this airport security check, standing few yards away, I looked again at her worn, pale face as a late winter's moon. फिर क्या होता है कि जैसे ही वो वहां पहुंच जाती हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर उनकी सिक्योरिटी चेकअप होती है। स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स, और थोड़ी सी दूरी पर खड़ी हो जाती है। I looked again at her worn pale face as a late winter's moon. जब दोबारा देखा तो उनका जो चेहरा है अब कैसा लगता है, लेट विंटर्स मून की तरह, जिस तरह से विंटर में जो मून लग जाता है एकदम फुल ऑफ मिस्ट, धुंध से धुंधला लगता है, येलो लगता है, इन द सेम वे उनकी मदर का फेस भी लग रहा था। एंड फेल्ट, और क्या महसूस हुआ, दैट ओल्ड फैमिलियर एज, उन्हें अपना पुराना दर्द याद आता, फैमिली वाला, फैमिली एज। माई चाइल्डहुड, मुझे बचपन का फियर था, तो मैं अपनी मदर से खोने का जो डर था वो याद आता है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, एंड ऑल आई डिड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ओके, सो दिस इज द टेक्स्ट दैट आई एक्सप्लेन्ड टू यू। ओके, now I am going to discuss some question answer on this poem. Okay students, for example एक question ये आता है, who is the poet of this poem? Poet of the poem is Kalidas, या poet ऐसा सकता है, ठीक है। Then where was the poet going, कहाँ जा रही थी, poet was going to Cochin airport, कब जा रही थी, last Friday को। Who was sitting with her, तो उनकी जो मदर थी, हर मदर वाज सिटिंग विद हर। व्हाट वाज द एज ऑफ हर मदर, 66। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू, इसमें कभी-कभी रिलेटेड डिवाइस पूछी जाती है, तो इसमें कौन-कौन सी रिलेटेड डिवाइस यूज हुई है। एक तो देखिए, एक तो इसमें सिमिली यूज हुआ है, सिमिली, एज ओल्ड एज, इसमें क्या यूज हुआ है, ये हमारा सिमिली है। ओके, इसमें सिमिली यूज हुई है। और यंग ट्रीज रनिंग, प्लांट्स चल रहे हैं, तो इसमें कौन सा हमारा रिलेटेड डिवाइस है, इसमें हमारा पर्सोनिफिकेशन है, फिकेशन। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इसमें क्या है, रेपिटेशन, इसमें क्या है, रेपिटेशन।
Okay, students. Thank you so much.